Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Chapter 10 Preparation of Final Accounts, the weightage for which is 20 marks. Let us have a problem, page number 332, question number 6. Prepare final accounts from the trial balance of Brindavan business for the year ended 31st March 2019. Trial balance as on 31st March 2019, debit balances amount rupees, credit balances amount rupees. तो ये प्रॉब्लम वृंदावन बिजनेस वालों का है और अपने को 31 मार्च 2019 के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाना है. सो वी आर प्रोवाइडेड विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, outstanding salaries, prepaid insurance, create 5% bad debts on debtors, depreciation on furniture, machinery, clothing stock. Here is the solution. First, we'll be preparing trading and profit and loss account, the heading for which will be trading and profit and loss account of Brindavan business for the year ended 31st March 2019. The format will be particulars, amount rupees, particulars, amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit. Then we'll be preparing balance sheet. The heading for balance sheet will be balance sheet of Brindavan business as on 31st March 2019. The format for which will be liabilities, amount rupees, assets, amount rupees. So before starting the problem, we need to remember two things. Whatever are given as debit balances, these will appear on debit side of the solution, either on debit side of trading account or on debit side of profit and loss account, or else they will appear on asset side of the balance sheet. जो भी यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ है वो सॉल्यूशन के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, या फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा. वॉट एवर इज गिवन एज क्रेडिट बैलेंसेस, these will appear as credit, these will appear on credit side of trading account or on credit side of profit and loss account, or else it will appear on liability side of the balance sheet. यहाँ जो भी क्रेडिट बैलेंसेस में दिया हुआ है वो सॉल्यूशन में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा. So how to start the problem? First we'll be writing with opening stock, purchases minus purchase returns, sales minus sales returns, closing stock. But in this problem we don't have opening stock. तो ये प्रॉब्लम में अपने को कहीं भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है. सो जब रोल नंबर 1 नहीं आता तब अटेंडेंस क्या होती, 2 से स्टार्ट होती. तो उसी तरह जब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस से स्टार्ट करेंगे. सो हियर द वैल्यू ऑफ परचेजेस इज गिवन एज 22,000. परचेजेस में से हम क्या माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न्स. बट ये प्रॉब्लम में परचेज रिटर्न्स भी स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, तो सिर्फ 2 परचेजेस लिखेंगे और उसका अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे. सो हियर इट इज शोन एज 2 परचेजेस 22,000. फिर क्रेडिट में आके क्या लिखेंगे, सेल्स. सेल्स विल बी ऑलवेज गिवन ऑन क्रेडिट साइड. यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है 47,000. इसमें से हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न्स माइनस करेंगे जो डेबिट बैलेंसेस में रहता. बट ये प्रॉब्लम में सेल्स रिटर्न्स की वैल्यू भी स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, तो सिर्फ हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाई सेल्स 47,000. Buy sales 47,000. Then we'll be writing closing stock. Closing stock adjustment item है, adjustment item दो बार आना. Once closing stock will be shown, closing stock 11,000. So closing stock will be shown on credit side of trading account as buy closing stock 11,000. It is an asset. Second time it will be shown on asset side of the balance sheet as closing stock. तो balance sheet के आखिर में बताएंगे closing stock 11,000. अब स्टार्टिंग से एक एक नाम पढ़ेंगे, जो जिसमें आता है वो लिखते जाएंगे. जो चीज फैक्ट्री से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, जो चीज ऑफिस से रिलेटेड है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, जो चीज अपनी खुद की है वो एसेट में लिखेंगे बैलेंस शीट में, और जो अपने खर्चे हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखेंगे. सैलरीज, इट इज एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज एन आइटम ऑफ ऑफिस, सो इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इस पे एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000 है. सो फर्स्ट सैलरीज विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज 2 salaries, 6,000 rupees will be shown in inner column, and we have an adjustment on it as outstanding salaries. So outstanding will always be added. So add outstanding 1,000. So 6,000 plus 1,000 it becomes 7,000. तो इसका मतलब क्या, 6,000 सैलरीज हम पे कर दिए, 1,000 रुपीज सैलरीज अभी पे करना बाकी है. सो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज इज 7,000, जिसमें से 6,000 पे कर दिए, 1,000 पे करना है. सो सेकंड टाइम आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000 विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. क्यों, ये 1,000 जो हम पे नहीं करें ये अपने पे खर्चा है. सो इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000 रुपीज. Then after salaries we have purchases. This was shown on debit side of trading account. Then we have wages. Wages, it is the remuneration paid to a laborer.
तो ये फैक्ट्री का आइटम है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। इस पे अपने को एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। सो फर्स्ट वेजेस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एज टू वेजेस 7800 will be shown in inner column. We have an adjustment that outstanding wages 2000. So outstanding will always be added. So two wages 7800, add outstanding wages 2000. 7 plus 2 9, 9800. So 9800 will be shown in outer column. तो अब इसका मतलब क्या, 7800 रुपये वेजेस के नाम पे कर दिए और 2000 रुपये वेजेस के पे करना बाकी है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस कितना आता, 9800। अब हम इसमें से कितने पैसे बाकी है, 2000 रुपये बाकी है। सो वी आर लायबल टू पे 2000 टुवर्ड्स वेजेस। So it will be shown on liability side as outstanding wages 2000। जैसा आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है ना यहाँ पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटीज में 1000 रुपये बताए थे, उसी तरह आउटस्टैंडिंग वेजेस भी 2000 बाकी है, तो इसको भी लाइबिलिटी में बताएंगे। देन आफ्टर वेजेस वी हैव कैरिएज ऑन परचेजेस। तो कैरिएज ऑन परचेजेस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ कैरिएज ऑन परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बताएंगे, टू कैरिएज ऑन परचेजेस 400 रुपीज। देन आफ्टर कैरिएज ऑन परचेजेस वी हैव ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस ये ऑफिस से रिलेटेड है, सो दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताएंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस 500 रुपीज। तो सैलरीज के बाद यहाँ पे है देखिए टू ऑफिस एक्सपेंसेस 500 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर ऑफिस एक्सपेंसेस वी हैव कमीशन। कमीशन प्रॉफिट कमीशन इट इज एन आइटम ऑफ ऑफिस। तो ये डेबिट बैलेंस इसमें दिया हुआ है, तो हम भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। अगर क्रेडिट में दिया हुआ रहता था तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते थे। तो समझ में क्या आया, कमीशन इफ इज गिवन एज डेबिट बैलेंसेस इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ कमीशन इज गिवन एज क्रेडिट बैलेंस इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी यहाँ पे अपने को कमीशन डेबिट में दिया हुआ है, तो हम ये 600 रुपये क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद टू कमीशन 600 रुपीज, यहाँ पे देखिए टू कमीशन 600 रुपीज। देन आफ्टर कमीशन वी हैव डिटार्स 30,000। डिटार्स किसको बोलते हैं, जिन लोगों से बिजनेस को पैसे आना है। तो इट इज एन एसेट, इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जिसपे अपने को एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या बोल के हैं, क्रिएट 5% बैड डेट्स ऑन डेटार्स। तो पहले हम डेप्टार्स बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे। सो यहाँ पे है देखिए डेप्टार्स 30,000 जिसपे से अपने को 5% बैड डेट्स क्रिएट करना है। तो 30,000 का 10% क्या होता है, 3,000। 5% विल बी हाफ ऑफ इट विच विल बी 1500। सो 30,000 में से 1500 रुपये माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या, जो 30,000 रुपये आना है उसमें से 1500 रुपये डूब जा रहे। सो दिस अमाउंट वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव, सो विल बी सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम total value of debtors. The value of debtors is 30,000, of which we are not going to receive 1500. So 30,000 debtors minus bad debts 1500. 30 minus 1 29 minus 500 28,500। तो अब ये जो 30,000 रुपये आना था इसमें से 1500 रुपये डूब जा रहे, तो कितने आएंगे, 28,500, 28,500 रुपीज आएंगे। तब ये जो 1500 रुपये है ये बिजनेस के लिए नुकसान है। तो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू बैड डेट्स 1,500। इधर लिखा हुआ है देखिए टू बैड डेट्स 1,500। नेक्स्ट आफ्टर डेटार्स वी हैव फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितना है, 3,000। फर्नीचर इट इज एन एसेट, इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इस पे अपने को डेप्रीसिएशन देना है। हियर इट इज गिवन एज डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 150 रुपीज। तो फर्स्ट फर्नीचर विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे फर्नीचर 3,000 रुपीज, जिसपे अपने को डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, लेस डेप्रीसिएशन 150। तो 3,000 रुपये जो फर्नीचर की वैल्यू है उसमें से 150 रुपये कम हो जा रहे। व्हाट इज डेप्रीसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। तो 3,000 का जो फर्नीचर था उसमें से 150 रुपये कम हो जा रहे। 3,000 माइनस 100 2,900 माइनस 50 2,850। तो जो फर्नीचर 3,000 का था अब 2,850 का हो गया। तो ये जो 150 रुपये है ये नुकसान है। इसको हम दोबारा किधर बताएंगे, दिस विल बी अगेन शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। सो हियर इट इज टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 150 रुपीज। देन आफ्टर फर्नीचर वी हैव, फर्नीचर के बाद क्या है, मशीनरी। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज गिवन एज 10,000 रुपीज। तो मशीनरी ये भी एसेट है, सो इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इस पे भी अपने को डेप्रीसिएशन देना है। और इज एडजस्टमेंट ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 500 रुपीज। सो फर्स्ट मशीनरी विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे मशीनरी 10,000 माइनस डेप्रीसिएशन 500।
व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। जो दो मशीन 10,000 की थी उसमें से 500 रुपए कम हो जा रहे, तो अब वो मशीन की वैल्यू क्या बाकी रहती? 9,500। तब ये जो 500 रुपए कम हो जा रहे, ये अपने लिए क्या है? नुकसान है। तो जैसा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में बताए, उसी तरह मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में बताएंगे। फर्नीचर के लिए क्या लिखे थे आप? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। मशीनरी के लिए क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 500 रुपीज। देन after machinery we have insurance. If it is given as factory insurance we would have recorded in trading account. If it is given as office insurance we would have recorded it in profit and loss account. अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस देता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते, ऑफिस इंश्योरेंस देता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते। कुछ भी नहीं बोल के सिर्फ इंश्योरेंस दिया तो ये ऑफिस का है समझ के प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 400 इंश्योरेंस बताएंगे, जिसपे अपने को एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपीज। सो फर्स्ट इंश्योरेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में बताएंगे टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम में लिखेंगे 400 रुपीज, जिसपे एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब क्या? वक्त से पहले पैसे पे कर देना। सो आउटस्टैंडिंग का मतलब ये पैसे पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करेंगे। प्रीपेड का मतलब ये पैसे वक्त से पहले दे दिए, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टू इंश्योरेंस 400 माइनस प्रीपेड 50, सो 400 माइनस 50 इट बिकम्स 350 रुपीज। तब ये जो 50 रुपये एडवांस में पे करे, नेक्स्ट टाइम जब सब पे करेंगे हम पे नहीं करेंगे। क्यों पे नहीं करेंगे? क्योंकि ये वक्त से पहले हम पहले पे कर दिए। सो प्रीपेड इंश्योरेंस इट बिकम्स एन असेट। सेकंड टाइम दिस विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपीज। यहाँ लिखा हुआ है देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपीज। देन आफ्टर इंश्योरेंस वी हैव बैंक बैलेंस 4,000 रुपीज। बैंक बैलेंस का मतलब क्या? अपने बैंक में इतने पैसे रखे हुए हैं, सो इट इज एन असेट, इट विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज बैंक बैलेंस 4,000 रुपीज। देन आफ्टर बैंक बैलेंस वी हैव बिल्स रिसीवेबल 2,000। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या? ये बिल के पैसे अपने को आना है, सो इट इज एन असेट, इट विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज बिल्स रिसीवेबल 2,000 रुपीज। देन आफ्टर बिल्स रिसीवेबल वी हैव कैश 1100। कैश का मतलब पैसा, पैसा अपना रहता, इट इज एन असेट, इट विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज कैश 1100। नाउ वी आर डन विथ ऑल द आइटम्स ऑफ डेबिट बैलेंसेस। तो जो भी डेबिट बैलेंसेस में थे वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे, या फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखिए। नाउ कमिंग टू क्रेडिट बैलेंसेस, तो जो भी क्रेडिट बैलेंसेस में है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखेंगे। सेल्स इट वाज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिटार्स 10,000। क्रेडिटार्स किसको बोलते? जिन लोगों को बिजनेस पे करना बाकी है, सो इट इज ए लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज क्रेडिटार्स 10,000। तो यहाँ पे लायबिलिटीज में बता रहे हम क्रेडिटार्स 10,000। Then after creditors we have capital 25,000. What is capital? The amount invested by the owner into the business is called as capital. It is always a liability and will always be shown on liability side of the balance sheet. सबसे पहले बैलेंस शीट के liabilities में कैपिटल ही लिखेंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे कैपिटल 25,000। देन आफ्टर कैपिटल वी हैव बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये बिल के पैसे अपने को आने के हैं, तो ये एसेट होता था, तो इसको हम एसेट में लिखे। बिल्स पेबल का मतलब क्या? 5,800। बिल्स पेबल ये 5,800 अपन पे करना बाकी है, तो इट इज ए लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे बिल्स पेबल 5,800। bills payable 5,800. So we are done with all the items of debit balances as well as all the items of credit balances. Now just let us have a look of the adjustments whether we have completed these two times or not. एक आउटस्टैंडिंग वेजेस था 2,000, इसको हम क्या करें? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस में ऐड करें, फिर सेकंड टाइम ये 2,000 को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस करके बताएं। देन सेकंड एडजस्टमेंट वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000। ये क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज को ऐड करेंगे। वंस इट इज एडेड टू सैलरीज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, then second time outstanding salaries 1,000 is shown on liability side of the balance sheet। तो बैलेंस शीट के liabilities में बताए outstanding salaries। then we have an adjustment prepaid insurance। ये क्या करें? प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस से माइनस करें। सो वंस इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंश्योरेंस ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर सेकंड टाइम प्रीपेड इंश्योरेंस ये एसेट होता, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताए प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपीज। देन वी हैड एन एडजस्टमेंट क्रिएट 5% बैड डेट्स ऑन डेटार्स। तो डेटार्स बैलेंस शीट के एसेट्स में बताते, जिसमें से अपने को 5% डाउट पे है, तो 30,000 का 10% 3,000 था, 5% उसका हाफ 1,500 हो जाता। तो बैड डेट्स हम क्या करें? डेप्टार्स से सब्ट्रैक्ट करें,
तो 30 माइनस 1500 इट बिकेम 28,500। फिर ये बैड डेट्स बिजनेस के लिए क्योंकि नुकसान है, इसको सेकंड टाइम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताए थे, टू बैड डेट्स 1500, टू बैड डेट्स 1500। देन इसके बाद का एडजस्टमेंट क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 150 रुपीज। तो फर्नीचर वो एसेट है, तो एसेट में फर्नीचर की वैल्यू में से 150 रुपीज माइनस करें। फर्नीचर 3000 का था, जिसमें से 150 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस करें। 3000 में से 150 चले गए, 2850। ये 150 रुपये बिजनेस के लिए नुकसान है, तो हम इसको दोबारा क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताएं, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो हियर इट इज शोन एज टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 150 रुपीज। फिर इसके बाद का एडजस्टमेंट क्या था, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 500। मशीनरी वो भी एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखे थे हम मशीनरी 10,000, इस पे भी डिप्रिसिएशन 500 देना है। सो लेस डिप्रिसिएशन 500, 10,000 माइनस 500 इट बिकम्स 9,500। ये 500 रुपये भी अपने लिए नुकसान है। तो जैसा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 150 बताए थे, उसी तरह डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में डेबिट में 500 रुपये बताएंगे, to depreciation on machinery 500 rupees. Then after this the adjustment was closing stock. Closing stock, once it will be shown on credit side of trading account, then it will be shown on asset side of the balance sheet. So with this we are done with all the items of debit balances, credit balances as well as the adjustments. Now let us do the balancing. सिर्फ अब total करना बाकी है. So 40 trading account में debit का total है 22 plus 9 31,000, 22 plus 9 31,800, 32,200। डेबिट का टोटल 32,200 है, क्रेडिट का टोटल 58 है। तो ट्रेडिंग में डेबिट का टोटल 32,200 है, क्रेडिट का टोटल 58 है। तो इन दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 58,000 ज्यादा है। तो 58,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। 58,000 ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, 58,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, 58,000 में से ये 32,200 माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 25,800। तो अब ये 25,800 क्या करेंगे हम, टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D करके लिखेंगे। 25,800 ब्रैकेट्स में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द सेम अमाउंट 25,800 विल बी रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड एज बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,800। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट का टोटल क्या आता है, 25,800। डेबिट का टोटल 7,000 प्लस 500, 7,500, 600, 8,100, 8,100, 8,250, 9,250, 10,250, 10,300, 10,600। डेबिट का टोटल 10,600 है, क्रेडिट का टोटल 25,800 है। तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 25,800। सो दोनों तरफ 25,800, 25,800 लिख देंगे। अब 25,800 में से क्या करेंगे, 10,600 माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आ रहा, 15,200, जिसको आप नेट प्रॉफिट करके लिखेंगे। टू नेट प्रॉफिट C/D 15,200 ब्रैकेट्स में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये हम कैपिटल में ले जाके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ऐड करेंगे। यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू 25,000 इनर कॉलम में लिखे थे, प्लस नेट प्रॉफिट 15,200, 25, 30, 40,200। नाउ विल बी डूइंग द टोटल फॉर बैलेंस शीट। द टोटल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट शुड बी द सेम। The total on liability side of the balance sheet is 59,000, as well as the total on asset side of the balance sheet is also 59,000. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.